Good morning, students. Now our next topic is Kirchhoff's law. Previously we have learned about Ohm's law. Ohm's law is simply it is valid for the simple electrical circuit, whereas in the case of when the electric circuit will become more complicated, so there Ohm's law it is very difficult to apply. That is why we use Kirchhoff's law. So Kirchhoff has given two important laws. The first one was that it is also known as current law or junction law. Current law or junction law. It states that algebraic sum of current meeting at a junction in the closed electrical circuit is zero. So what is meant by algebraic sum of current meeting at a junction? Let us see few currents I1, I2 and I3 are meeting at a junction and the current I4 is outgoing. So it states that incoming currents is equal to outgoing currents. Let us see. First, there is a need to understand the sign convention. Generally, the incoming currents are taken as positive and outgoing currents are taken as negative. आने वाले करंट को पॉजिटिव लिया जाता है और जाने वाले करंट को नेगेटिव. So can we write I1 plus I2 plus I3 minus I4 is equal to 0? So from this I1 plus I2 plus I3 is equal to I4. So it is very clearly stated that incoming current is equal to outgoing current. यानी जितना करंट आता है उतना ही करंट चला जाता है. यानी जंक्शन पर किसी भी जंक्शन पर चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होता है. नो एक्यूमुलेशन ऑफ करंट टेक्स प्लेस एट द जंक्शन. This law can also be stated in the another ways that algebraic sum of the charges is equal to 0. That is why it obeys the law of conservation of charge. अब ये कैसे होता है? इसको हम लोग अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो I1 into t plus I2 into t plus I3 into t is equal to I4 into t. So what is the product of current into time? Charge. Q1 plus Q2 plus Q3 is equal to Q4. So it states that incoming charge is equal to outgoing charge. So this law can be stated that algebraic sum of the charges is 0 at any point in the junction. That is incoming charge. Whenever the charge is coming towards the junction, it will not become stagnant at that. So how much charge is coming, so that charge will flow further away. Okay, so this is the first law, that is the law of conservation of charge. जैसे we will study through a simple example. जैसे for example, if a current of 4 ampere is coming here and this is the 3 ampere current and this one is the 2 ampere and here something I ampere is going. So we have to find out how much current it is, I is it is. So incoming currents are taken as positive as stated according to sign convention. So 3 ampere plus 4 ampere total will become 7 ampere. So 7 ampere आ रहा है, 2 एम्पियर चला गया तो कितना हुआ 5 एम्पियर. सो द करंट इज 5 एम्पियर. इन दिस वे यू हैव टू अप्लाई द किरचॉफ्स करंट लॉ और it is also stated in this way also. Now the Kirchhoff's second law, that is the very important law. Kirchhoff's second law, it is also said to be a mesh law. Mesh law क्या कहता है कि algebraic sum of EMF, algebraic sum of EMF is equal to algebraic sum of product of current and resistance in the circuit. Okay, so let us see.
This is I am drawing a very simple circuit. This is the first cell whose EMF is E1, this is the second cell whose EMF is E2, and this is some external resistance, suppose it is R1, and this is R2, and this is R3. Let us suppose, you can put any, you can assign any name to it. Suppose the current I1 is flowing from here, and here the current I2 is flowing. So what will happen at between this point? Can we apply Kirchhoff's current law over here? That I1 and I2, it becomes I3. So can we write I3 is equal to I1 plus I2? So this law is also known as mesh law. More the number of variables you will make here, more you have to make the loops. A, B, C, D, E, F. I have assigned certain names to the point and corners A, B, C, D, E और F. So पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि जितने आप करंट के वेरिएबल्स बनाएंगे उतने ज़्यादा आपको इक्वेशंस या लूप्स बनानी पड़ेंगी, उन लूप से उतने सारी इक्वेशंस आएंगी। वेरी फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, अगर आप करंट के अलोंग चलेंगे, आपको पता है कि बड़ी बड़ी लाइन से करंट निकलता है, तो करंट के अलोंग चलेंगे तो क्या लेंगे? पॉजिटिव, ठीक है। इफ वी आर मूविंग अलोंग करंट, क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, और करंट के उल्टे चलेंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो पहले क्या करना है? सबसे सिंपल काम होता है कि पहले बड़ी बड़ी बैटरी से, मतलब टर्मिनल से करंट को निकाल देना, यहाँ से भी निकाल देना है। तो करंट के अलोंग चलेंगे तो पॉजिटिव लेना है, करंट के उल्टे चलेंगे तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने आप करंट के अलग अलग वेरिएबल्स बनाएंगे, जितने भी अलग अलग वेरिएबल्स, मैंने I1 बना दिया, I2 बना दिया और I3 बना दिया, तो मुझे 3 लूप बनाने पड़ेंगे, 3 लूप बनाने पड़ेंगे। 3 लूप से फिर 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर उन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके I1, I2 और I3 की वैल्यू बतानी रहेगी। लेकिन अगर मैं इस I3 के बदले में अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर I1 प्लस I2, तो कितने अभी वेरिएबल्स हो गए करंट के? 2 वेरिएबल्स हो गए। तो 2 लूप से ही मेरा 2 इक्वेशन बनेगा और वो फर्दर आगे सॉल्व कर लेंगे, जल्दी से हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने आप वेरिएबल्स ज़्यादा बनाएंगे उतने ज़्यादा आपको इक्वेशंस पर लूप लेना पड़ेगा, उतने ज़्यादा इक्वेशंस बनाना पड़ेगा और फिर उनको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। लेट अस इसको समझिए जरा कैसे होता है ये। तो पहले मैंने कंसीडर किया एक लूप को, तो कंसीडर एक लूप लिया मैंने A, B, E, ये छोटा वाला लूप कंसीडर किया, A, B, E, F, A, ठीक है। समझना ध्यान से, मैं चल रहा हूँ ऐसे A, B, E, F, A, ठीक है, ऐसे चल रहा हूँ। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ EMF, मतलब इस लूप के अंदर जो आपने लूप लिया है, इस लूप के अंदर जितना भी जो EMF है वो उसका सम इसके इक्वल होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो जैसे यहाँ से करंट, पहले EMF कितना है इस लूप में, इस गिवन लूप के अंदर EMF कितना है? एक E1, ठीक है। तो एक EMF में तो ये अलजेब्रिक सम हो गया, तो इतना ये लिखा जाएगा I इंटू R। अब देखो I1 करंट यहाँ से आ रहा है, क्या रास्ते में कोई रेजिस्टेंस है? नहीं है। अब यहाँ पर भी बिल्कुल है, तो क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 इंटू R1। मैं करंट के अलोंग चल रहा हूँ तो मैंने पॉजिटिव लिया है। अब देखो यहाँ भी आप चल रहे हैं, यहाँ से करंट कितना गया? अब देखो I1 प्लस I2 इसके अंदर एंटर हुआ, तो यहाँ से चला जाएगा I1 और दूसरा I2 यहाँ से, क्योंकि I1 प्लस I2 आ रहा था, तो जितना I1 निकला था वापस उतना I1 जाएगा और यहाँ से I2 इधर आ जाएगा। तो हम चल रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पर मिला हमारे को I1 प्लस I2 इंटू R1, और फिर जब ऊपर गए तो I1 के साथ में आगे एक और मिल गया R2, तो कितना हो जाएगा? I1 इंटू R2, ठीक है।
सेकेंड लूप कंसीडर करते हैं। कंसीडर सेकेंड लूप, दैट इज कौन सा लेते हैं, ऐसे चले करंट के अमाउंट, तो हो जाएगा सी बी ई डी सी, सी बी ई डी सी। तो कितना ईएमएफ है, एक ही ईएमएफ है, तो लिख दिया E1 सॉरी E2। तो E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से चल रहा है करंट के साथ कोई रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, तो कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू R1 प्लस, अब देखो यहाँ से फिर वापस आएंगे, यानी हम चल रहे हैं ऐसे, तो कितना हो जाएगा I2 इंटू R3। ठीक है, ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा। अब समझो जरा कि अगर तीसरी लूप बनाना पड़ा तो कैसे बनाएंगे। तो अगर मैं कंसीडर करता हूँ लूप ऐसे, कंसीडर अगर लूप मैं थर्ड लूप लेता हूँ, बाई चांस मेरे पास 3 वेरिएबल हैं, तो मैं थर्ड लूप बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, तो मैं लूप पहले असाइन करूँगा, मैं कैसे चल रहा हूँ, तो A B C D E F A, ठीक है, A B C D E F A ऐसे चल रहा हूँ मैं। तो वापस वही कॉन्सेप्ट याद रहेगा, करंट के अलोंग चलेंगे तो पॉजिटिव, करंट के उल्टे चलेंगे तो नेगेटिव। तो देखो पहले बात करते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। तो E1 माइनस E2 क्यों हुआ, मैं चला ऐसे, तो बैटरी में करंट ऐसे निकलता है, तो E1, और यहाँ से तो उल्टे जा रहा हूँ ना, करंट तो ऐसे आ रहा है, मैं उल्टे जा रहा हूँ, तो क्या लेंगे माइनस E2, ओके, विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। अब यहाँ से जो करंट आ रहा है, रास्ते में कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर देखो I2 आ रहा है और मैं जा रहा हूँ इधर, सो माइनस I2 इंटू R3, उल्टे जा रहा हूँ इसलिए क्या हो जाएगा माइनस, अब ऊपर जा रहा हूँ तो करंट के अलोंग हो गया, तो क्या हो जाएगा प्लस I1 इंटू R। So in this way what you will do, you will form the equations, और very simple, बहुत सिंपल है, I1 I2 की वैल्यूज गिवन होगी, R1 R2 की वैल्यूज गिवन होगी, इनमें पुट करना रहेगा, इक्वेशंस को सॉल्व करने रहेगी, और करंट की वैल्यू I1 I2 और I3 जो भी है आपको वैल्यूज इसमें निकालना रहेगा। अगर सपोज मान लो बाई चांस करंट की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो जो हमने सपोज किया है उसका उल्टा मान लिख देना है। नाउ अगर सपोज करो कि करंट की वैल्यू यहाँ पर I2 आ गई, मेरा सॉल्व करने के बाद I2 सपोज नेगेटिव आया, तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने माना है वो गलत है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ में है।